Okay, so for many purposes it is necessary to change an alternating voltage from one to another of a greater or smaller value. This is done with a device called transformer using the principle of mutual inductance. Okay, transformer is basically working on the principle of mutual inductance, that you have two cores, okay, which are parallel to each other. We are transferring current from one core and we are getting mutual inductance in second core, and basically by change in flux we will get current or induced EMF in the second core. But the induced EMF may be higher or greater than the previous inductance or previous voltage supply. Depends on our uh, purpose of transformer. Like there are two type of transformers: step up transformer and step down transformer. Actually, okay, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ट्रांसफार्मर के दो टाइप्स होते हैं. एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है एंड सेकंड वन इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. द ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ द टू सेट्स ऑफ कॉइल insulated from each other. Okay, दो coils होती है but they are insulated from each other. That means come they can't interact with each other directly. Okay, so that if such thing happen, it will be short circuit into the transformer, so it is not good for the transforming purpose. So we need to isolate both the coils from each other. For that purpose we are using some of the material which can isolate them from each other. Okay, they are wound on a soft iron core, either on a top of each other, top of the other as in figure shown, or on a separate limbs of the core as shown in figure. One of the coils is called primary coil, has turns Np, and other coil called secondary coil has turns Ns. Often the primary coil is input coil and secondary coil is your output coil of the transformer. Okay, so this is the basic design of the transformer. ओके, ट्रांसफार्मर में बहुत कुछ होता है बट बेसिकली आपको सिर्फ एक छोटी सी चीजें समझनी. तो यहाँ पे दो कॉइल्स होती है. ये आयन कोर होता है, सॉफ्ट आयन कोर होता है. तो कभी कभी इसके एक सिंगल लेग पे ही दोनों कॉइल्स को वाउंड किया जाता है, बट दोनों आइसोलेटेड होती है. ओके, दे विल नॉट मिक्स इन ईच अदर. ओके, कंप्लीटली आइसोलेटेड होती है. इसका करंट इसमें नहीं जाएगा और इसका करंट इसमें नहीं जाएगा कभी भी. उसमें इंसुलेटिंग मटेरियल यूज किया होता है जिससे कि उनका करंट एक दूसरे में पास नहीं हो. जो कॉइल है उसी का करंट उसी में से पास हो. तो जो फर्स्ट कॉइल होती है जहां से हम इनपुट देते हैं वो प्राइमरी कॉइल होती है. सपोज उसके टर्न्स एनपी हो, और सेकेंड कॉइल जो है उसको सेकेंडरी कॉइल कहा जाता है जिसके टर्न्स एनएस है. सिमिलरली इट कैन ट्रांसफर आल्सो हैव सच काइंड ऑफ डिजाइन. उसमें क्या होता है कि जो सॉफ्ट का आयन कोर होता है उसके दो अलग अलग लिम्स पे आप क्या कर रहे हो, जो वाइंडिंग है वो आप कर रहे हो उसके ऊपर. You are doing winding at a separate limbs of the soft iron core. Okay, and it is your primary winding and this is one your secondary winding. अब इनमें टर्न्स कम ज्यादा हो सकते हैं. Depending on the turns, transformer can be divided into two. Transformers having two types of. There are two types of transformer we are having. Okay, one is step down transformer and one is step up transformer. So what do you mean by step up and step down? तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है कि जो ट्रांसफार्मर स्टेप अप मतलब उसको हाई करना है, तो इनपुट वोल्टेज आपका लो होगा और आउटपुट वोल्टेज आपका हाई होगा. ऐसा ट्रांसफार्मर जो आपको आप इनपुट कम दे रहे हो और आउटपुट ज्यादा वोल्टेज दे रहा है तो उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहा जाता है. और जिस ट्रांसफार्मर में आप इनपुट हाई आ रहा है बट आउटपुट वोल्टेज आपका लो कर देगा, तो ऐसे ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहा जाता है. ओके, so there are two types of transformers, step up and step down. और step up है या step down है. सबसे बेसिक चीज है ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा तो आपने आपके घर के मतलब सोसाइटी के बाहर एक डीपी होती है. आप डीपी बोलते हो, एक्चुअली वो डीपी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है. डीपी नहीं होता, डीबी होता है वो, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स. वो एक्चुअली एक ट्रांसफार्मर होता है. ओके, जिसको आप डीबी बोलते हो. तो वो वर्क क्या करता है, वो एक्चुअली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है. जब पावर स्टेशन से जो पावर आता है वो हायर वोल्टेज का पावर होता है, बहुत ज्यादा वोल्टेज का, 440 वोल्ट से भी ज्यादा वोल्टेज होता है उसका. उस वो 440 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज पे आपके घर के जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे घर पे जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो मैक्सिमम 220 230 पे ही वर्क करते हैं. तो वो पावर सप्लाई आप डायरेक्टली घर में नहीं ले सकते. सो इसीलिए हर एक सोसाइटी या कॉलोनी के बाहर एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है या डीबी जिसको बोलते हैं. वो एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जिसमें जो इनपुट पावर आता है वो मैक्सिमम बहुत हाई वोल्टेज का होता है. उसके उस ट्रांसफार्मर थ्रू उसको पास किया जाता है, फिर जो आउटपुट पावर मिलता है आपको वो लो वोल्टेज बन जाता है. तो वो 440 या 450 से डायरेक्ट 220 तक आ जाता है. तो ये क्या कर रहा है, इनपुट आप ज्यादा दे रहे हो और आउटपुट कम मिल रहा है, तो उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहा जाता है.
एंड दैट ट्रांसफर, और वो आपके गली नुक्कड़ पे कहीं पे भी मिलेगा आपको ट्रांसफर, मोस्ट प्रोबेबली आपको दिखने मिलेगा कि वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर ही होता है। तो सिंगल फेज पावर आपको मिलता है आउटपुट में, वो सारा पावर आप घर में यूज करते हो क्योंकि रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप उसको स्टेप डाउन नहीं करोगे, डायरेक्ट यूज करोगे, तो इससे आपके घर के सारे इंस्ट्रूमेंट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, बिकॉज दे कांट वर्क ऑन दैट सच हायर वोल्टेजेस। इसीलिए बट समटाइम्स वी नीड टू इंक्रीज द पावर। समटाइम्स हमें क्या करना होता है, पावर वोल्टेज इंक्रीज करना होता है कि आपका इनपुट पावर कम आ रहा है बट वी नीड हायर पावर, हायर वोल्टेज। सो उस टाइम पे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यूज किया जाता है, जो क्या करेगा, लोअर वोल्टेज को हायर वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। बट देयर इज अ करंट करंट वोल्टेज कॉम्प्रोमाइजेस हियर। अगर आप वोल्टेज हाई करोगे तो करंट डिक्रीज हो जाएगा, और करंट हाई करोगे तो वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये बताऊंगा कैसे होता है। Okay, when an alternating voltage is applied to primary, the resulting current produces an alternating magnetic field flux, which links with the secondary coil and induce an EMF on it. In it, एक्चुअली क्या होता है, जब आप ये प्राइमरी कॉइल में से करंट पास करोगे, मतलब आप यहाँ से एक वोल्टेज दे रहे हो, तो इसकी वजह से क्या होता है कि करंट पास होता है इस कॉइल में से, और उस करंट के कारण, बिकॉज यू आर प्रोवाइडिंग एसी वोल्टेज ओनली। याद रखना, ट्रांसफॉर्मर सिर्फ एसी वोल्टेज पे ही वर्क करता है, डीसी पे ट्रांसफॉर्मर कभी वर्क नहीं करता। डीसी वोल्टेज को हाई या लो करने के लिए ट्रांसफॉर्मर कभी यूज नहीं किया जाता, क्योंकि अगर आप डीसी वोल्टेज यूज करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये ट्रांसफॉर्मर सैचुरेट हो जाता है। सैचुरेट मत इट मींस कि अगर आप डीसी वोल्टेज यूज कर रहे हो तो म्यूचुअल इंडक्टेंस तो प्रोड्यूस होगा बट चेंज इन फ्लक्स नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि डीसी वोल्टेज चेंज नहीं होगा तो करंट चेंज नहीं होगा, करंट चेंज नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड आपका कांस्टेंट होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड तो इसके साथ लिंक करेगा, you will get the flux but you can't get the change in flux। And what is important to produce induced EMF is change in flux with respect to time. This is the necessary condition to get an EMF in secondary loop. Okay, ये हमने चैप्टर 6 में पढ़ा था कि अगर आपको EMF चाहिए तो you need to have a change in flux only, so then only you can get an EMF। तो अगर आप डीसी वोल्टेज दे रहे हो तो करंट चेंज नहीं होगा, करंट नहीं चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट प्रोड्यूस होगा। करंट पास करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होने ही वाला है, और उसकी वजह से फ्लक्स भी लिंक करेगा, बट चेंज इन फ्लक्स इज इंपॉर्टेंट हियर। वी डोंट नीड जस्ट अ फ्लक्स, वी नीड चेंज इन फ्लक्स। ओके, डीसी वोल्टेज में फ्लक्स चेंज नहीं होता, इसीलिए आपको उसमें ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। So the value of this EMF depending on the number of turns in the secondary loop. Okay, अब EMF की वैल्यू क्या होगी, इसकी डिपेंडेंसी सेकेंडरी लूप के टर्न्स पे होती है। We consider an ideal transformer in which the primary are negligible resistance and all the flux in the core links with the both primary and secondary winding। मतलब जो टोटल फ्लक्स है, मतलब जो रेजिस्टेंसेस है प्राइमरी सेकेंडरी की, वो नेग्लिजिबल है, और जो फ्लक्स है टोटली फ्लक्स किसके साथ लिंक हो रहा है, दोनों के साथ, प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग से। Let the phi be the flux in each turn of in the core at time t due to the current in a primary loop when the voltage Vp is applied to it। Suppose कि हमने प्राइमरी लूप में उसको Vp वोल्टेज अप्लाई किया है, तो एट टी टाइम पे जो उसकी कोर है उसके कारण का जो फ्लक्स है वो कितना है, phi। तो व्हाट इज द वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज एट द सेकेंडरी लूप, फ्लक्स कितना था, एक टर्न का फ्लक्स आपका phi था, तो हमारे पास कितने टर्न है टोटल सेकेंडरी लूप के साथ, ns टर्न है। प्राइमरी लूप के टर्न्स एनपी लिखेंगे हम, सेकेंडरी लूप के टर्न्स को एनएस लिखेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एट सेकेंडरी लूप विल बी एनएस। सो टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सेकंड लूप or secondary loop coil, so then induced EMF or a voltage ES in a secondary with NS turns is ES is equal to minus NS d phi by dt। This will be your output voltage। Okay, because of we are passing current through the primary loop and we are getting output voltage at the second loop। Okay, the similar thing for the primary loop, the alternating flux phi also induced in a EMF called a back EMF in the primary loop। अब हमें पता है कि हमारे पास दो कंसेप्ट होते हैं, एक सेल्फ इंडक्टर जो इसी कॉइल का उसी के साथ होगा, और सेकंड होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब इस कॉइल में जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगा बिकॉज ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, और इस कॉइल में जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगा ये बिकॉज ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। So this will be like EP is equal to minus NP d phi by dt। तो NP क्या है, number of turns of a primary coil। Okay, NS is the number of turns of secondary coil। Okay, so but EP is equal to VP। Actually ये EMF जो होगा वो कितना होगा, तो आप वोल्टेज सप्लाई दे रहे हो उतना EMF होगा। If
this were not so, the primary current would be infinite since the primary has a zero resistance as we assumed. हमने ऐसा देखा था कि प्राइमरी रेजिस्टेंस क्या है, नेग्लिजिबली स्मॉलर है प्राइमरी लूप का रेजिस्टेंस, प्राइमरी कॉइल का। तो अगर ऐसा नहीं होगा, ईपी इज इक्वल टू वीपी नहीं होगा, तो जो करंट होगा वो इनफाइनाइट बन जाएगा। इफ द सेकेंडरी लूप इज ओपन सर्किट और अ करंट टेकन फ्रॉम इट इज वेरी स्मॉल, देन टू गुड अप्रोक्सीमेशन, तो अगर सेकेंडरी लूप है उसका वो ओपन सर्किट है, मतलब हमने कुछ भी उसको कनेक्ट नहीं किया है, या उसका रेजिस्टेंस बहुत ही स्मॉलर लिया है, अगर हमने उसका करंट बहुत ही छोटा लिया है, वेरी स्मॉलर करंट, तो हमें क्या मिलेगा, ES इज इक्वल टू VS मिलेगा। ओके, मतलब कि जो भी आपका इंड्यूस ईएमएफ होगा वो सेकेंडरी वोल्टेज के बराबर होगा। Where we can write Vs is the voltage across secondary coil, so that we can write here Vs is equal to minus Ns d phi by dt and Vp is equal to minus Np d phi by dt. So by taking their ratios, Vs by Vp is equal to Ns by Np. We will get this approximation like Vs by Vp equals to Ns by Np. This is nothing but the formulas of induced EMF, parallel law. ओके, फैराडे लॉ का ही फॉर्मूला है और इंड्यूस्ड ईएमएफ का ही फॉर्मूला है। ये बहुत सिंपल टॉपिक है। Vs by Vp is equal to, Vs क्या है, वोल्टेज एट सेकेंडरी लूप, Vp क्या है, वोल्टेज एट प्राइमरी लूप, Ns क्या है, टर्न्स ऑफ सेकेंडरी लूप और Np क्या है, टर्न्स ऑफ प्राइमरी लूप। So we can see that कि जिसके टर्न्स ज्यादा होगा उसका वोल्टेज ज्यादा होगा। Okay, so note that the above relation has obtained using the three assumptions. The primary resistance and current are small. The same flux links with the both primary and secondary, as varies little flux escapes from the core. मतलब बहुत छोटा फ्लक्स है जो वेस्ट हो रहा है, बाकी पूरा जो फ्लक्स है वो प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ लिंक कर रहा है, एंड सेकेंडरी करंट इज स्मॉल, और सेकेंडरी करंट भी क्या है, स्मॉलर है। तो इफ द ट्रांसफर इज assumed टू बी 100% एफिशिएंसी, नो एनर्जी लॉस, अगर ट्रांसफॉर्मर 100% एफिशिएंसी और कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, तो जितना पावर आप इनपुट में दोगे उतना ही पावर आपको आउटपुट में मिलेगा। सो द इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, सो दैट P इज इक्वल टू VI इक्वेशन, क्योंकि सप्लाई पावर से यहाँ पे, तो हम लोग इक्वेशन कौन सा यूज करेंगे, P इज इक्वल टू VI, मतलब आपका इनपुट और आउटपुट दोनों पावर्स क्या होंगे, सेम होंगे यहाँ पे। ओके, सो दैट इनपुट पावर और इनपुट करंट क्या है, तो इनपुट करंट IP और इनपुट वोल्टेज VP इज इक्वल टू आउटपुट करंट IS और आउटपुट वोल्टेज VS। Although the some energy is always lost, it is good at, this is the good approximation since well designed transformer may have an efficiency more than 95%। मतलब कि ट्राई करते हैं कि ऐसे अच्छे से अच्छे ट्रांसफॉर्मर बनाए कि उसकी एफिशिएंसी एटलीस्ट, मतलब कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 95% तक जा सकती है, उसके उससे ज्यादा कभी एफिशिएंसी नहीं हो सकता, मतलब एटलीस्ट 5% ऑफ पावर विल बी डेफिनेटली वेस्टेड। 100% पावर यूटिलाइज होगा ऐसा इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम कोर्स यूज कर रहे हैं, तो हम कॉइल्स यूज कर रहे हैं, तो वो मटेरियल है, और मटेरियल है तो उसका रेजिस्टेंस होगा तो इट विल वेस्ट द पावर। डेफिनेटली हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी तो हमारा कुछ some amount or power will be wasted in the form of heat. So definitely we can't get a 100% efficiency. But for ideal purpose, we will take here the efficiency is 100%. So there is no power lost. So we can write here IP is equal to VP, IP VP is equal to IS into VS. IP VP is equal to IS into VS. So what is IP and what is VP? So IP is a primary current, VP is primary voltage. Okay, and IS is secondary current and VS is secondary voltage. So that taking their ratios, we already know one ratio. What we know, VS upon VP is equal to NS upon NSP. That means it is directly proportional to number of turns. But now for this equation, from this equation, we can write this equation like IP upon IS, current to current, ratio of primary current upon secondary current is equal to ratio of secondary voltage upon primary voltage. Okay, and we know that Vs upon Vp is nothing but Ns by Np. Okay, I will tell you some of the questions which are asked in your exam, JEE or NEET based on this topic. Okay, note that if they are given in the book or not, I don't know, but they will be asked in your exams. So I and we both oscillate with the same frequency as an AC source. Equation gives the ratio of amplitudes or RMS values of the corresponding quantities.
So you can see from here, IP upon IS is equal to VS upon VP is equal to NS upon NP. That means current is inversely proportional to turns. What it shows, अगर प्राइमरी टर्न्स ज्यादा है तो उसका करंट कम होगा, और प्राइमरी टर्न्स कम है तो उसका करंट क्या होगा, ज्यादा होगा. सिमिलरली अगर प्राइमरी वोल्टेज ज्यादा है, प्राइमरी करंट आई मीन सॉरी प्राइमरी टर्न्स ज्यादा है, सेकेंडरी या प्राइमरी कोई भी, अगर टर्न्स ज्यादा है तो वोल्टेज ज्यादा होगा लेकिन करंट कम होगा. टर्न्स कम है तो वोल्टेज कम हो जाएगा लेकिन करंट ज्यादा होगा. दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द पर्सपेक्टिव ऑफ ट्रांसफॉर्मर. So now we can see that the transformer affects the voltage and current we have. So Vs is equal to Ns upon Np into Vp, and Is is equal to Np upon Ns into Ip. Okay, this relation is very important. ये वाला आप याद रखोगे, this formula, you will get all the answers. इसमें से अगर एक क्वेश्चन भी आता है MCQ, I mean अगर कोई एक आध एग्जांपल भी इसमें से आता है तो it will based on only this formula. Okay, it will completely based on this formula. Okay, note this formula. It is very important formula. IP upon IS is equal to VS upon VP is equal to NS upon NP. Okay. अब इसमें आता है आगे की चीज ये आती है. So that is if the secondary coil has greater number of turns than the primary coil, मतलब NS greater than NP हुआ तो voltage is stepped up. तो VS greater than VP होगा, मतलब आपके प्राइमरी वोल्टेज से सेकेंडरी वोल्टेज ज्यादा होगा. और दिस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर अरेंजमेंट इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर. अगर इसको टर्न्स रेशियो भी कहा जाता है, NS अपॉन NP को. और हमेशा याद रखना टर्न्स रेशियो हमेशा सेकेंडरी कॉइल अपॉन प्राइमरी कॉइल का रेशियो ही होता है. इट इज डिनोटेड बाय R. So R is nothing but turns ratio, and it is always number of turns in secondary loop upon number of turns in a primary loop. Okay, इसको उल्टा मत कर देना. Okay, कभी कभी आपके बुक में एग्जांपल में डायरेक्ट टर्न्स रेशियो दिया होता है, तो ऑलवेज कीप रिमेंबर टर्न्स रेशियो में हमेशा सेकेंडरी ऊपर होता है, प्राइमरी नीचे होता है. बट सम ऑफ द ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी इज अबव एंड सेकेंडरी इज बिलो, बट वो आपको नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, वो चीज अलग होती है. वो मतलब आप इंजीनियरिंग वगैरह में जाओगे, इलेक्ट्रिकल करोगे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करोगे तो उसमें कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मर्स आते हैं, उनके टर्न्स रेशियो में NS अपॉन NP लेना होता है. बट ऑलवेज कीप रिमेंबर इफ R ग्रेटर देन 1, मतलब कि सेकेंडरी टर्न्स ज्यादा है आपके प्राइमरी से. ओके, सेकेंडरी टर्न प्राइमरी से ज्यादा है तो वोल्टेज इज अप्लाइड टू बी स्टेप अप, मतलब आपका वोल्टेज स्टेप अप हो जाएगा, मतलब आपको इनपुट से ज्यादा आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा. और दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर. हाउएवर इन दिस अरेंजमेंट देयर इज अ लेस करंट इन द सेकेंडरी देन प्राइमरी करंट. क्यों? तो अगर आपका वोल्टेज सेकेंडरी का ज्यादा है तो ऑलवेज कीप रिमेंबर दिस इज द कॉम्प्रोमाइज बिटवीन वोल्टेज एंड करंट. जहां पे वोल्टेज ज्यादा होगा वहां पे करंट कम होगा, जहां पे वोल्टेज कम होगा वहां पे करंट ज्यादा होगा. ऑलवेज कीप रिमेंबर इन द ट्रांसफॉर्मर, इफ वोल्टेज इज हायर current will always lower, and if current is higher voltage is always lower. ओके, और इसका कंपैरिजन किसके साथ होगा? तो प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ. अगर ये प्राइमरी वाला है तो प्राइमरी का वोल्टेज ज्यादा है तो सेकेंडरी का वोल्टेज कम होगा. तो प्राइमरी का अगर वोल्टेज ज्यादा होगा तो उसका करंट कम होगा, बट इन सेकेंडरी लूप करंट विल हायर एंड वोल्टेज विल लोअर. ये दोनों चीज एक साथ होती है. ओके, simultaneously these things happen, but for primary and secondary. अगर आपका स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है उसका मतलब होगा आपका प्राइमरी वोल्टेज कम होगा, सेकेंडरी वोल्टेज ज्यादा होगा. तो करंट में उसका उल्टा होगा कि आपका प्राइमरी करंट ज्यादा होगा, सेकेंडरी करंट कम होगा. ओके, बिकॉज हमें क्या करना है, पावर को सेम रखना दोनों साइड. तो इसके लिए दोनों में कॉम्प्रोमाइज होना बहुत जरूरी है, बिकॉज बोथ द एंड पावर विल बी सेम. ओके, दोनों एंड पे पावर चेंज नहीं होता, जितना पावर आप इनपुट में दोगे उतना आउटपुट में. क्योंकि हम जितनी भी चीजें देखने वाले हैं या जितने एग्जांपल्स यहाँ पे सॉल्व करने वाले, कुछ भी करने वाले थे, वो सारे हम आइडियल ट्रांसफॉर्मर्स के लिए ही सॉल्व करने वाले हैं. सो दैट प्राइमरी उसमें हमेशा वोल्टेज करंट कॉम्प्रोमाइज ऑलवेज आपको मिलेगा. ओके, सिमिलरली ओके, तो यहाँ पे NP ग्रेटर देन NS लेस देन 1 हुआ, NP over NS less than 1, then IS greater than IP. Okay, for example, if the primary coil of the transformer has 100 turns and secondary coil has 200 turns, तो NP by NS का रेशियो क्या होगा? 2 होगा. तो NS by NP का रेशियो 2 होगा, तो NP by NS का रेशियो 1/2 होगा. Thus 220 वोल्ट इज इनपुट, तो 10 एम्पियर. ओके, मतलब आपने 220 वोल्ट इनपुट वोल्टेज दिया और 10 एम्पियर आपका इनपुट करंट है. तो स्टेप अप जब करोगे आप
तो आपका वोल्टेज 220 से 440 हो जाएगा, मतलब आपका वोल्टेज डबल हो जाएगा और करंट हाफ हो जाएगा। ओके, करंट 10 एम्पियर से कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर आउटपुट साइड में। ओके, दिस इज वेरी बेसिक एंड सिंपल एग्जांपल। अब सेकेंड थिंग क्या है इसमें कि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, if the secondary coil has less turns than the primary coils, ns less than np हो गया, तो we have a step down transformer. In this case, vs less than vp, is greater than ip, and that is the voltage step down or reduced and the current is increased. इसकी वजह से आपका वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज, बट आपका करंट इंक्रीज हो जाएगा. So the equation obtained above applied to the ideal transformer without any energy loss, but in actual transformers some energy losses occur due to the following reasons. तो किस कारणों की वजह से जो रियल ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं उनमें लॉसेस आपको देखने मिलते हैं. तो सबसे फर्स्ट रीजन है, मे बी दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन एग्जांपल फॉर 2 मार्क्स. व्हाट आर द लॉसेस इन एनर्जी इन ट्रांसफॉर्मर्स? व्हाट आर द एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर्स? तो सबसे पहले कौन सा था, फ्लक्स लिंकेज के कारण. देयर इज ऑलवेज सम फ्लक्स लीकेज. देखो 100% फ्लक्स लीक होगा, 100% आपका जो भी फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक होगा, इट इज इम्पॉसिबल. तो उसमें से सम अमाउंट ऑफ फ्लक्स विल बी ऑलवेज लीकेज इन एटमॉस्फेयर. So that is not all of the flux due to the primary passes through the secondary due to the poor design of core or air gaps in a core. So it can be reduced by winding the primary and secondary coils one or other. Just a minute. अब देखो फ्लक्स लिंकेज का क्या होता है कि आप अगर प्राइमरी वाइंडिंग वन साइड रख रहे हो, सेकंड साइड पे आप सेकेंडरी वाइंडिंग रख रहे हो, तो आपका सारा का सारा फ्लक्स सेकंड लूप के साथ इंटरेक्ट होगा ऐसा जरूरी नहीं है. तो उसका रीजन होता है कि अगर आपका पुअर डिजाइन है, सही से आपने डिजाइन नहीं किया, सही से वाउंड नहीं किया है, या टर्न्स में गैप रखा होगा, तो उसकी वजह से एयर गैप्स क्रिएट होते हैं और उसकी वजह से सम अमाउंट ऑफ फ्लक्स विल बी वेस्टेड और लीकेज. तो इसीलिए इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय वाइंडिंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स वन और अदर. इसके लिए ये वाला डिजाइन प्रेफर किया जाता है. दिस डिजाइन इज प्रेफर्ड देन दिस वन. तो जिससे क्या एक ही लिंक पे आप सारा कॉइल दोनों कॉइल्स पे रखते हो और वेल आइसोलेटेड होती है दोनों कॉइल्स, जिसकी वजह से आपको फ्लक्स मिले. प्लस फिर देश में फिर सेकंड है कि रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग्स. द वायर यूज्ड फॉर द वाइंडिंग्स हैज सम रेजिस्टेंस एंड सो एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू द हीट प्रोड्यूस्ड इन द वायर. इन हाई करंट द लो वोल्टेज वाइंडिंग्स दीज आर मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग थिक वायर. तो क्या है, अगर वायर सब यूज कर रहे हो तो उसको रेजिस्टेंस फाइनाइट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस तो होता है, और फाइनाइट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा और ऐसे वायर्स में से जब करंट पास होता है तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है. आई स्क्वायर आर, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन आई स्क्वायर आर, यू विल हैव ए हीट एनर्जी. तो जब आपके अगर ऐसा है कि कोई वाइंडिंग उसमें से करंट हाई और वोल्टेज लो है, तो इस केस में आप इस लॉस को कैसे मिनिमाइज कर सकते हो, तो आपको थिक वायर यूज करनी पड़ेगी. तो अगर थिक वायर कर यूज करोगे तो करंट को ज्यादा जगह मिलेगी पास होने के लिए, और करंट को अगर ज्यादा जगह मिल रही तो मैक्सिमम करंट आपका यूटिलाइज होगा और बहुत कम करंट है जो हीट में लॉस होगा. हमेशा याद रखना कि अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है ना, तो उसकी प्राइमरी वाइंडिंग, क्योंकि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आपका सेकेंडरी करंट हायर होता है, प्राइमरी करंट लो होता है. तो अगर लो करंट है तो आपको वायर थिन भी चलेगी, और हायर करंट है तो आपको वायर थिक्स यूज करनी पड़ेगी. तो इसीलिए अगर आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो इनपुट वायर्स जो होती है, इनपुट वाइंडिंग की जो वायर्स होती है वो थिन होती है कंपेयर टू आउटपुट वाइंडिंग. बट इन अ सेकेंडरी लूप, सॉरी इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में आपके जो इनपुट वायर्स होते हैं वो बहुत मतलब ठीक होते हैं, क्योंकि उसमें से हायर करंट पास होता है. ओके, क्योंकि आप स्टेप डाउन कर रहे हो, मतलब हायर वोल्टेज को लोअर वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहे हो, आप स्टेप डाउन कर रहे हो ना, तो आपका इनपुट करंट हाई होगा,
लो होगा और आउटपुट करंट आपका क्या होगा, हाई होगा। ओके, उस केस में तो उसकी वजह से आप आउटपुट वायर्स क्या रखोगे, थिक रखोगे, और इनपुट वायर्स क्या रखोगे, थिन रखोगे स्टेप डाउन में। और स्टेप अप में उसका उल्टा करोगे आप। स्टेप अप में आप इनपुट करंट हाई होता है और आउटपुट करंट क्या होगा आपका, जस्ट अ मिनट, आई एम कंफ्यूज, वोल्टेज कम करंट हाई, वोल्टेज ज्यादा करंट लो। ओके, स्टेप अप में आपका आउटपुट वोल्टेज लो होता है तो करंट, आउटपुट वोल्टेज हाई होता है तो करंट लो होगा। तो करंट लो होगा तो आप थिन वायर से भी चला सकते हो स्टेप डाउन। So AD currents. Third one is reason AD current. Alternating magnetic flux induces an AD current in an iron core and causes heating. This effect is by reduce using laminated core. अब ये जो टॉपिक है ये सिलेबस में था पहले। एडी करंट मतलब क्या होता है कि अगर आप एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ कि आपके पास लैमिनेटेड कोर है, ऐसा कोई कोर है, अगर आपने पूरा पोर्शन यूज किया, ऐसा कंप्लीट यूज किया, तो इसमें छोटे छोटे ऐसे गोल 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 करंट्स प्रोड्यूस होते हैं और बहुत सारे करंट प्रोड्यूस होते हैं और इतने सारे करंट्स की वजह से हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है। ओके, उससे पावर लॉस ज्यादा होता है। इसकी वजह से एक कंप्लीट कोर की जगह क्या करते हैं, लैमिनेटेड कोर यूज की थी। लैमिनेटेड मतलब क्या, ऐसे उसके पार्ट्स कर देते, कट कर देते उसको। ओके, और उसके बाद ये कट किए हुए पोर्शंस को वापस आइसोलेट करके जोड़ देते हैं। तो इसकी वजह से ना जो करंट ऐसे कंप्लीट फ्लो हो रहा था, अब करंट के लिए जगह ज्यादा होगी। अब करंट को इतना पूरा वे कंप्लीट करना पड़ेगा। इसकी वजह से क्या हो जाता है, पावर लॉस कम हो जाता है इसकी वजह से। ओके, इसीलिए कंप्लीट कोर की जगह पे लैमिनेटेड कोर्स यूज की जाती है। क्यों, टू रिड्यूस एडी करंट लॉसेस। And the similarly fashion, the last is hysteresis. The magnetization of a core is repeatedly reversed by the alternating magnetic field, and the resulting expenditure of energy in core appears, appears as the heat appears as a heat, and is kept to be minimized by using a magnetic material which has low hysteresis loss. अब हिस्टैरिसीस लॉस भी आपके सिलेबस में था, बट इट इज आउट ऑफ सिलेबस, 5th चैप्टर में था ये। इसमें ऐसा होता है कि मैग्नेटिक कोर जो होती है उसको अगर आप कोई मटेरियल उसके अंदर रख रहे हो तो वो कंटिन्यूअस मैग्नेटाइज होती है, लेकिन अल्टरनेटिवली मैग्नेटाइज होती है। क्योंकि हम एसी करंट यूज कर रहे हैं तो उसमें प्लस माइनस चलते रहता है, तो वो अल्टरनेट होते रहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि हीट लॉस इंक्रीज हो जाती है। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए आप ऐसा मटेरियल चूज करो जिसमें हिस्टैरिसीस लॉस कम होता है। इसका एक्चुअली एक हिस्टैरिसीस कर्व होता है, आपको अभी नहीं है तो वो नेक्स्ट टाइम सिलेबस में कभी आएगा। The last scale of transmission and distribution of electrical power over long distances is done with the help of using transformers. अब हमको पता है कि हमारा पावर जो पावर स्टेशन पे जनरेट होता है, लाइक हाइड्रो पावर प्लांट है या न्यूक्लियर पावर प्लांट है या फिर कोल थर्मल पावर प्लांट है। ओके, तो या वाइंड पावर प्लांट होता है, वाइंड एनर्जी भी हम यूज करते हैं। तो ये बहुत दूर कहीं पे ये पावर जनरेट होता है, बट हमें उसको ट्रांसमिट इनटू सिटी या इन विलेजेस, बहुत सारी जगह पे हमें उसको ट्रांसमिट करना होता है। तो हम जैसे मतलब हम पावर को कोई स्टोर नहीं कर सकते, वहां पे कोई स्टोर नहीं है या कोई ऐसा डब्बा नहीं कि वहां पे रखो फिर जब लगेगा तब ले लो। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होती। जैसे वहां जनरेट होता है वैसे सीधा ट्रांसमिट करना होता है। ओके, वी कांट स्टोर इट एट सम प्लेस। सो उसके लिए हमें क्या करना होता है, अगर आप पावर को जैसे जनरेट होता है वैसे अगर आप ट्रांसफर करोगे तो उससे क्या होता है, अगर आप उसको लो वोल्टेज पे ही ट्रांसफर करोगे तो उससे करंट ज्यादा होता है। करंट ज्यादा होने के कारण वहां से यहाँ तक आते आते उसमें से बहुत सारा पावर आपका वेस्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ हीट एनर्जी। क्योंकि पावर को ट्रांसमिट करना है तो हमें किसी वायर थ्रू ही ट्रांसमिट करना पड़ेगा। ओके, तो बहुत सारा पावर आपका वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए क्या किया जाता है, जो पावर जनरेट होता है ना वहां से उसको स्टेप अप किया जाता है और उसको बहुत हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट किया जाता है इन सिटी। सिटी के अंदर छोटे छोटे पावर स्टेशन होते हैं। ओके, वहां तक वो पावर आता है, फिर वहां से उसको फिर एरिया वाइज डिवाइड किया जाता है, फिर उसको वापस थोड़ा स्टेप डाउन किया जाता है, उसके एरिया वाइज डिवाइड किया जाता है। फिर एरिया में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस होते हैं, वहां पे फिर उसको और लो करके फिर पूरे घरों में डिवाइड किया जाता है ऐसे। और उसमें भी डिमांड वाइज डिवाइड किया जाता है कि आपका पावर डिवाइड कहाँ हो रहा है, इंडस्ट्री में जा रहा है या फिर हाउसिंग सोसाइटीज में या रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में जा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग उसको स्टेप अप या स्टेप डाउन किया जाता है। Okay, the voltage is output. The voltage output is of the generator is step up so that the current is reduced and consequently I square R loss is cut down. So it is then transmitted over a long distance to an area of substation near the consumers. मतलब उसको क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप अप किया जाता है। स्टेप अप इसलिए किया जाता है जिससे करंट बहुत कम हो जाए, और करंट कम होने के कारण आई स्क्वायर आर के अकॉर्डिंग लॉसेस भी कम हो जाते हैं।
तो उसके बाद उसको सब स्टेशन जो होते हैं सिटी के अंदर, जो छोटे छोटे सब स्टेशन होते हैं, वहां पे किया जाता है। उसके बाद फिर कंज्यूमर्स तक पहुंचाया जाता है। देयर द वोल्टेज इज स्टेप डाउन, और जहां पे कंज्यूमर्स के पास जाने के बाद वो छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होते हैं, उससे उसको वापस स्टेप डाउन किया जाता है, एंड इट इज फर्दर स्टेप डाउन at distributing substation and utilizing poles before the power supply 220 volt reaches our home। और उसके पहले पहले पोल्स यूज किए जाते हैं, छोटे छोटे खंबे होते हैं घर के पास, तो वहां पे पोल्स होते हैं, वहां पे 220 वोल्ट पावर आता है, और वहां से आप अपने घर में पावर आपके साथ कनेक्ट किया जाता है। गॉट इट?